Hello, I'm Audrey De Silva, and I'm a founder who Audacious Entertainment LLP. So, our company we hold international pageants for married women, which is called the Mrs. Grand International and Mrs. Supranational World. So, what we do in the pageant is that हम इंडिया के जो representatives हैं उनको international लेके जाते हैं and we make sure that we give them the kind of training where they come forward and represent India as married women in a very beautiful way. So hence today here we have Payal Chatterjee with me. She has made India very proud and she is the first runner-up at the Mrs. Grand International. So Payal. Hello everyone, I'm Payal Chatterjee. As Ma'am has already introduced me, I have won first runner-up Mrs. Grand International, which was held in Yangon City at in Myanmar very recently, and since then I've had a very overwhelming journey. बहुत ही अच्छा लगा था by making India proud. It's a it's a dream that I'm living right now. But let me tell you, this dream is not easy. It's been a hustle since then, and I think I'm just loving it. So, and it really wouldn't have been possible without the support of my husband, who's right here with me, and my family, of course. But he is here with me. He's a lawyer. Yeah. So, Parth? Yeah. Thank you for that. मेरा नाम पार्थ मलिक है. I'm a lawyer by मेरा नाम पार्थ मलिक है. I'm a lawyer by profession. So the journey of supporting her began with a very interesting thing. I was in my office and I get a call and she says I want to participate in Mrs. Pageant, India pageant. Mrs. India Pageant. तो मुझे लगा कि पता नहीं कुछ ऑफिस के बाद की पार्टी पे गई है तो शायद कुछ दोस्तों के साथ है तो कुछ ऐसे होगा. तो आई वाज चलो घर आ जाओ फिर बात करेंगे. तो तब तक मैं बिल्कुल उसको बड़ा कैजुअली ले रहा था. आई नेवर थॉट दैट शी वाज वेरी सीरियस अबाउट इट. She comes home and she sticks to the same point. She brings that point the next day. This keeps on happening for about 3-4 weeks. And then I'm convinced that she is going for it. और मेरे पास ये है कि भैया आप अगर कोई इतने मन से कर रहा है, I think as a not as a husband but as a human being, you should just encourage the other person to achieve what they want to achieve in life. So I was always there to, when I got to know that she's pursuing it so seriously, I was just behind her all the time. That's sweet. आपकी जर्नी कैसी रही पूरे पेजेंट के दौरान? It's already have it's not easy. Mrs. category में participate करना is not easy at all because yes, let me tell you, this was a childhood dream, पर वो dream कहीं खो गया था while I was like with my responsibilities as a daughter and then as a wife. I forgot my responsibility as a woman, and this is when I had that calling. फिर मुझे ये था कि अब तो करना ही है बस, नो मैटर वॉट. मैं एक प्रोफेशनल भी हूँ, एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ. मैं ब्रांड मार्केटिंग मैनेजर हूँ एल जी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया में. सो मेरी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिर्फ घर के अलावा मेरी कॉर्पोरेट में भी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत है. मेरे मम्मी पापा की तरफ, फैमिली की तरफ, मेरे इन लॉज की तरफ. सो वो रख के भी मैंने ये सोचा कि आई नीड टू डू दिस, आई नीड टू लिव माई ड्रीम. And definitely it's not easy. It's a journey. It's not a destination actually. It's a journey. And I'm actually loving this journey. It's a hustle. It's a everyday hustle. But still, I know like if you want to achieve something, if you dream of something, if you want to achieve something, you should go for your dream. And this is what I want to tell all the women out there as well. Okay, do it. Live for your dream. Make it a point to achieve your dream. Keep very laser sharp focus towards your goal and you will definitely achieve it. मेरा अगला क्वेश्चन था कि जैसे इसमें हेल्थ का वो हो ही जाता है. मैंने आपको बताया ना कि मिसेस कैटेगरी में आके इतना हसल हो जाता है कि फिटनेस अपने आप ही टेकन केयर हो जाता है. बट या इट्स ट्रू दैट आई एम वेरी माइंडफुल अबाउट व्हाट आई ईट. फिटनेस का ध्यान डेफिनेटली देना पड़ता है क्योंकि हमारे पैजेंट इंडस्ट्री Hey, and I feel that every industry, every person should take care of their body. This is the most important thing that God has given us, and we should definitely take care of it. Very mindful of what we eat, what exercise करना. I know it's very difficult. बहुत it's better said than done. But मैं कोशिश करती हूँ कि how I try to be fit but the hustle actually keeps me fit. So yeah, and I'm always there. I'm always doing something. मुझे अच्छा लगता है. मैं घर पे आके भी खाना भी बनाती हूँ, काम भी करती हूँ, ऑफिस भी जाती हूँ, पैजेंट भी करती हूँ, मॉडलिंग भी कर रही हूँ, फैशन शोज भी कर रही हूँ.
but I'm enjoying it, definitely enjoying ये प्लेटफॉर्म था इंटरनेशनल जिसमें इंडिया को रिप्रेजेंट करना था, it. जी. तो कैसा लगा कि भाई इंडिया को एक रिप्रेजेंट करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, तो जब आपको पता चला और जब आपने रिप्रेजेंट किया तो कैसा माहौल था, कैसे उसको कॉन्फिडेंस? तो मैं हमेशा से ही चाहती थी, लाइक इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट टू बी up there representing your country. It's a very very extremely proud moment and I always wanted to do that. But जब आप एक बार स्टेज पे होते हो, then it's a different feeling altogether. You're just there, go get it. So it was the go-getter attitude that I had when I was standing on the stage. When I was standing there, when I was representing the country, it's a feeling like, you know, which is inexplicable actually. You can understand that, you feel that only when you are there on the stage. वो फीलिंग एक्सेप्शनल है. और एक बार जीत के आने के बाद इवन नाउ आई फील वेरी प्राउड टू represent. I feel like आप लोग यहाँ पे हो, we are having this get together, this crowning. It's a very proud feeling, very proud moment. 8 तारीख को इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी आ रहा है, क्या मैसेज है आपका पूरे इंटरनेशनल वुमेन्स को, क्या आप मैसेज देना चाहते हैं पूरा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर सारी वुमेन्स को, हर तबके की? So my message to the women out there would be to believe in yourself. Because if you do not believe in yourself, then the world will not believe in you. So it's very important to believe in yourself, to chase your dreams. Your dreams are important. Everybody else's will be taken care of, but your dreams are very important. वो वुमेन्स के लिए कौन सी तीन चीजें बताएंगी वुमेन्स के लिए जिनको सपने पूरा करने के लिए जरूरी है वुमेन्स के? पैशन रहना चाहिए. आप जो भी अचीव करना चाहते हो, आप बहुत पैशनेट होना चाहिए. यू हैव टू बी एक्सट्रीमली पैशनेट अबाउट व्हाट यू वांट टू अचीव. देन यू शुड हैव रेजिलियंस. एक बार गिरो दोबारा उठो. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड परसिवियरेंस. हो जाएगा. इफ यू एक्चुअली हैव लेजर शार्प फोकस, क्लियर गोल इन योर माइंड, इट विल हैपन. अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने अपना रिजर्वेशन भी दिया है वुमेन्स को, पूरा जो 2029 के अंदर जो संसद बनेगी उसके अंदर 33% का, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? और इसके अलावा अभी हमारे दिल्ली की वुमेन सीएम भी बनी है, जी हाँ, रेखा गुप्ता जी. जी, हम यही कह सकते हैं कि आज के डेट में एवरीबडी इज़ वर्किंग टुवर्ड्स एम्पावरिंग वुमेन. हमारे देश में आज बहुत तरक्की हो रही है, हर तरीके से तरक्की हो रही है, पर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो जितनी भी एफर्ट्स लिए जा रहे हैं, विच इज़ कमेंडेबल. आई वुड अप्रिशिएट everybody are, as you said, like, you know, our political strength. Like, I would really appreciate, I'm grateful to our country कि अभी इन women को इतना empowerment मिल रहा है. We are getting opportunities everywhere, be it corporate, be it every strata of the society. Women are getting noticed, they are getting all the opportunities that they have been craving for, they have been asking for. So वो अब हो रहा है, and it's a long way to go, but it's still happening. And I would just say that, like, you know, all the women out there, you have to believe in yourself, as I said. फ्यूचर प्लान्स की बात करें तो क्या फ्यूचर प्लान्स रहने वाले हैं आप लोग, किन ड्रीम्स के लिए और तैयारी करते हैं? So ये actually question मुझे पूछा, मेरा मतलब फिनाले क्वेश्चन था ये, what legacy would you want to carry forward? So वही आंसर मैं देना चाहती हूँ कि the legacy of a positive footprint. मैं एक फाउंडेशन बनाना चाहती हूँ. I want to leave behind a very strong foundation for the generations to come, to follow the footsteps that I have been doing. I have been following the footsteps of my reigning queens. और मैं वही चाहूँगी, मैं वही बोलना चाहूँगी. I will be leaving behind a positive footprint and a very strong foundation for the future generations to thrive on. मेरा क्वेश्चन आपसे था कि बेसिक से बताइए. अच्छा, तो पायल की तो तैयारी बहुत कम टाइम में हुई थी, एंड आई वॉज वेरी प्राउड दैट मैं खुश थी जब मैं पायल से मिली थी, क्योंकि पायल का सबसे पहले जब मैंने पायल से बात किया था तो मुझे एक चीज़ से मैं बहुत इम्प्रेस थी, क्योंकि मेरे लिए कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड तो मुझे पता था कि पायल का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा इज़ हर कम्युनिकेशन, बिकॉज शी इज़ अ वेरी वेल स्पोकन एंड अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन व्हेन यू स्पीक टू हर. एंड व्हाट हैपेंस इज कि पैजेंट में कम्युनिकेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विद इंटेलिजेंस. तो ऐसा नहीं है कि आप ब्यूटिफुल हो,
आई थिंक ब्यूटी कम्स विद द वे यू कैरी योरसेल्फ, द वे यू स्पीक. आपकी पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है कि आप कैसे उस चीज़ को आगे लेके जा रहे हो, एंड हाउ डू यू रिप्रेजेंट योर ब्यूटी थ्रू योर पर्सनालिटी एंड योर कम्युनिकेशन. सो पायल आई न्यू, जब मैंने उनसे बात किया था तो उनका फोटे ये था कि हर कम्युनिकेशन टुक हर रियली फॉरवर्ड. एंड बाकी के अलावा जब हम ट्रेन कर रहे थे, हम जब म्यांमार में थे, तो I was how do I put this, very emotional for me, but हम 7 दिन वहाँ पे जर्नी में थे और सुबह के 5 बजे तक हम ट्रेनिंग करते थे. 7 बजे इनका कॉल टाइम होता था, तो एवरी डे 5 बजे 2 घंटे सोते थे. 2 घंटे भी नहीं, barely 1 घंटे तुम सोते थे. एंड हम इनको सुला देते थे, मैं सो जाती थी. मैं इनको सुबह 5 बजे हमको 5 बजे सुला देते. ये मैं सोने चली जाती थी, बट टिल 5 o'clock, इमेजिन इफ यू आर ट्रेनिंग, दैट इज 5 AM, 7 o'clock आप उठते थे, आपकी ट्रेनिंग वहाँ पर होती है. तो वहाँ पर भी अगर अलग उनकी ट्रेनिंग होती है जहाँ पर वॉक होता है एंड पूरा फिनाले का ट्रेनिंग होता है. सो द गर्ल्स डिडंट स्लीप फॉर 7 days. बट उसके अलावा जो हम ट्रेनिंग देते हैं इज़ ऑल द इंटरनेशनल ट्रेनिंग, जैसे कि आपका कम्युनिकेशन हो गया, आपका डाइनिंग एटिकेट, क्योंकि आप जब बाहर जा रहे हो यू आर रिप्रेजेंटिंग योर एंटायर, आप खुद को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो. और इंडिया की पॉपुलेशन इज सो हाई, सो यू रिप्रेजेंटिंग सो मेनी पीपल आउट देयर, एक देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो. सो योर डाइनिंग एटिकेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन Q&A होता है, क्वेश्चन आंसर्स. फिर उसके अलावा आप कैमरा के सामने कैसे दिखो, कैसे बोलते हो, आप लोगों के सामने जब आप बाहर जाते हो तो आपको ये क्राउन आपको मिला है, दैट मीन्स इट इज़ लाइक यू नो द बिगेस्ट अचीवमेंट दैट यू डन. तो अगर आप ये क्राउन पहन रहे हो आपके सिर पे, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप एक तरीके से दिखो, एक तरीके से एज अ वुमन यू नीड टू बी. सो आई थिंक दीज आर द काइंड ऑफ ट्रेनिंग वी गिव. हमारा ट्रेनिंग 1 साल से ज़्यादा का होता है, एंड उसके बाद the girls go internationally. But Payal fortunately was very well trained, and that is one of the blessings that helped us go forward. And she indeed made us proud. Like, I'm very proud of her, honestly. एक सवाल I पायल have जी से. to, मैं इसको like before you ask the next question, I'll have to tell something. So 5 बजे हम लोग सोते थे, इनको भी सुला देते हैं, और 7 बजे कॉल टाइम होता है. पर 7 बजे मैं इनको उठाती थी मेरे बाल बनाने के लिए. My hair styling throughout the pageant was done by her, because she was not happy with my hair. So because my hair is very tricky, and she took it personally. Like, she used to wake up in the morning and she used to make my hair. She used to style my hair. She was always. So because And, it's a kind of yeah. industry, right? Pageant में आपको you need to look a certain way. Yeah. आप like I said, you're representing a She's womanhood, always- and pageants have been for more than 60 years now. तो एक womanhood आप represent कर रहे हो, and it is, a woman has to, the way a woman looks at a pageant, with being empowered, strong. So everything, it is a combined combination of everything together. Pageantry actually teaches you womanhood a lot, like Yeah. how you have Sisterhood, to stand, womanhood. sisterhood, womanhood, how you actually should stand up for each other, and how Yes. important it is, and it makes you very happy, it makes you very satisfied, like when you actually help each other. And this is something that we actually have to learn, we have to propagate, and I propagate this in a very big way. Sisterhood is very important, we really need to stand up for each other. तो पायल जी, कभी आपकी जर्नी में ऐसा भी कोई टाइम आया जो आपको लगा कि बैकआउट कर जाना चाहिए, अब नहीं होगा I'm मुझसे? sure I'm sure आया. पायल रोई भी है, रोई भी है, ये हमारा झगड़ा भी हुआ है. 7 दिन वहाँ पे जब हम लोग थे, आई थिंक रोज हम लोग एक बार तो हमारा कोई ना कोई, मतलब एक रोना धोना का सेशन तो होता ही था, क्योंकि वहाँ पर सो आप ओवरवेलमिंग. इमेजिन अगर आप हो तो आपके साथ साथ बहुत सारे कंट्रीज है, USA है, यू हैव पोर्टो रिको, बहुत सारे कंट्रीज है आप, एंड दे आर ब्यूटीफुल वुमेन. तो Yeah. प्रेशर इतना होता है. बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है. And also, like, I feel that we Indian women are like, our average height is lesser than the other European countries. That is actually something, like, you have to Yeah. get over it. Like, वो उसको आपको overcome करके, like, you'll have to overcome that. Everything, like, it sometimes get very, yeah, it is scary. It's a very scary thing. रोज ही ऐसा लगता है कि नहीं अब तो हो गया, अब तो नहीं हो पा रहा है. But then, like, yeah, this is what I said. Resilience, it's very important. It's the not giving up attitude, which is so important. Give up नहीं करना है बस. सर, आपको कभी ऐसा लगा जर्नी के अंदर कि रोक लेना चाहिए, परिवार में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस आ रहा है? नहीं सर, मेरे परिवार में कोई डिस्टर्बेंस नहीं था.
इनफैक्ट आप लगाइए नहीं सर, जितना ये लोग प्रिपेयर कर रहे थे उस टाइम पे, खैर इनको तो प्रिपरेशन टाइम ही बहुत कम मिला था इस चीज का. आई थिंक इट वाज अबाउट 6-7 days in which you had to get a Less than visa. that. After the visa, do all the arrangements, arrange the dresses and all Yeah. that stuff that happens, and then take the flight, book a flight to Myanmar. There was an apprehension. The apprehension was मतलब एक म्यांमार को लेके apprehension जरूर था Correct, कि yeah. whether we should Yeah. मतलब we should जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए. That was Yeah. the only एक हिकअप था उस चीज को लेके, क्योंकि एक न्यूज में ऐसी रिप्रेजेंटेशन रहती है म्यांमार के बारे में कि आप और बहुत ज्यादा यहाँ से लोग जाते भी नहीं है. Correct. तो एक थोड़ा सा एक रहता है मन में कि पता नहीं क्या होगा. बट देन व्हेन दे लैंडेड देयर एंड शी कॉल्स मी Beautiful एंड शी इज लाइक country, इट्स अ yeah. ब्यूटीफुल कंट्री, इट्स दिस, Beautiful इट्स दैट. country. तो तभी मैं कह रहा हूँ कि यांगोन में रहना, बॉर्डर के बाहर मत जाना. कुछ नहीं पता न्यूज में क्या हो जाए. तो दिस वाज हैपनिंग अ लॉट इन द Yeah. फर्स्ट फ्यू आवर्स आई वुड से. बट देन आई रियलाइज कि इतना ये लोग प्रेशर में थे उस टाइम, इनका टाइम इतना, दे वर सो पैक्ड विद द टाइम एंड ऑल that I don't really think they even had a time to go and explore the city at that time. I think We as did, they but rightly, Barely. yeah, as they were I saying, would love to go back. 5 बजे सो Yeah, रहे हैं, and 7 बजे explore. उठ रहे हैं, तो उसमें आप क्या ही देखोगे और क्या ही करोगे. तो जब मैडम को क्राउन पहनाया गया जी. तब आपकी फीलिंग कैसी थी? जब मैडम को क्राउन बनाया गया तो मैं तो मतलब फाइल बंद करके ऐसे था कि मैं तो जज बन गया, पता नहीं क्या हो गया मेरे साथ. तो इट वाज अ वेरी गुड फीलिंग ऑब्वियसली, एंड आई वाज वेटिंग फॉर हर टू जस्ट कॉल मी. और मुझे पता था इनका फोन इनके पास नहीं होगा, तो आई वाज जस्ट वेटिंग कि कैसे बात होगी. देन आई कांग्रेचुलेट हर. देन मैं अपने डैड मॉम के साथ देख रहा था ऐसे, तो वी वर जस्ट वेटिंग फॉर द टाइम कि जैसी फोन पे बात होगी, तो देन ऑफ कोर्स द कांग्रेचुलेशंस विल स्टार्ट. It was a very good feeling, of course, but एक वो होता है कि जब ये इंडिया आई, जब मैं गया एयरपोर्ट पे लेने, तो things were like really beautiful. एक इमोशनल मोमेंट भी होता है. फिर एक लगता है कि मतलब there's a star in the house. तो पायल, क्या अब आप मानती है कि एक कामयाब औरत के पीछे हस्बैंड का हाथ होता है? नहीं, मैं मानता हूँ. आई थिंक हर कामयाब औरत हो या मर्द हो, सबको एक दूसरे की जरूरत है. इट्स नॉट बिहाइंड. आई थिंक एवरी मैन एंड वुमेन दे शुड स्टैंड टुगेदर. दे शुड स्टैंड हैंड इन हैंड. दे शुड वॉक हैंड इन हैंड. ऑफ कोर्स वी हैव ईच अदर्स बैक, पर ये जरूरी है कि हम साथ में चले. ये बहुत जरूरी है कि हम साथ में चले. सपोर्ट करें दूसरे को. Support करें. Encourage करें. Encourage discourage करें. ना करें. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइक ये तो मैं मानूंगी कि हस्बैंड का सपोर्ट तो बहुत जरूरी है. एनकरेजमेंट It बहुत is. जरूरी है. तो कहीं ना कहीं पीछे जो बैकग्राउंड म्यूजिक आशिकी 3 वाला, No, but I think the way Parth, क्योंकि हम जब पहुंचे थे म्यांमार, वहाँ पर नेटवर्क बहुत वीक था, एंड अगेन वहाँ पर VPN चलता है, तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया था टू कम्युनिकेट. तो आई थिंक पार्थ वाज द फर्स्ट थिंग. आई गेट माई फोन, मेरा जैसे VPN शुरू हो गया, सिम कार्ड मैंने ले लिया था. सबसे पहले मेरे मम्मी पापा का नहीं, बट पार्थ का मुझे मैसेज आया था कि हैव यू ऑल रीच सेफ. मतलब इमेजिन हम इतने लोग थे, वी वर अ टीम दैट हैड गॉन, एंड it was so nice that he was so concerned about her कि मेरी बीवी सही पहुंची है कि नहीं, सब कुछ ठीक है. बट जस्ट नॉट दैट, एक हफ्ते पहले से इन दोनों की, मुझे तो पता है, मैं तो बॉम्बे से हूँ, तो मैं तो बॉम्बे से इनको बता रही थी ये करना है वो करना है. बट आई थिंक द वे it's very important for a husband support, क्योंकि the way he ran for her हर चीज में, रात को 2-3 बजे भी दोनों प्रिपरेशन कर रहे थे, एंड पायल तो कर ही रही थी, बट अब विथ हर द वे पार्थ वाज सपोर्टिंग हर, ड्राइव करते हुए लेके जाना यहाँ से वहाँ बिना सोए सब कुछ करना. तो पायल तो 2 हफ्ते चलो सोई नहीं, बट ठीक है, टुडे वी नो हाउ शी वन द क्राउन, क्योंकि बिना नींद के वो एड्रेनलिन हाई रख कर आपने प्रेशर में यू मेड श्योर यू डू